Hello students, welcome to your biology class. Hope you all are well. So today we will start with the daily review, then we will start our next topic. So what are the three different types of epithelial tissues based on the shape of their cell? Like we learned yesterday, there are the three types of cells based on the shape. First is squamous tissue, columnar tissue and cuboidal tissue. So name the following types of tissues. The first one is squamous epithelium, B part is columnar epithelium, C is cuboidal epithelium and D is stratified squamous epithelium. So what is the function of ciliated columnar epithelium tissue? जो ciliated columnar epithelial tissues होते हैं उनका function क्या होता है? First तो वो कहाँ पे present होते हैं? Respiratory tract में. So they help in the movement of substances such as mucus through the respiratory system, and the function of cuboidal epithelium that it provides mechanical support. Okay, so students, yesterday we learned about the epithelial tissue, right? So today we will learn about the connective tissues. So let's start. So connective tissues are of 7 different types based on their functions. First is adipose, blood, tendon, cartilage, areolar, ligament and bone. So what is the connective tissues? Connective tissues होते क्या हैं? So the connective tissues are responsible for connecting and supporting different tissues, organs and parts of the body, and they are the most abundant tissues in the body. तो सबसे ज़्यादा जो tissues present होते हैं वो connective tissues होते हैं. So in a connective tissues, cells are embedded in a medium or an intercellular matrix. तो जो connective tissues में जो cells होते हैं वो एक medium में embedded होते हैं. The intracellular matrix is composed of fibers that give connective tissues support. तो जो intracellular matrix होता है वो उसमें fibers present होते हैं जो कि connective tissues को support देता है, और जो matrix होता है वो jelly like या फिर fluid भी हो सकता है या फिर dense और rigid भी हो सकता है. The nature of the matrix differs as per the function of the connective tissues. So the connective tissue, first one is blood. First connective tissue is blood. So the blood has a fluid liquid matrix called plasma. तो blood में जो है एक liquid matrix जो present होता है उसको हम plasma बोलते हैं, और plasma में क्या होता है? RBCs, WBCs and platelets are present, and जो plasma होता है उसमें protein, salts and hormones are present. So blood helps transport gases, digested food, hormones and wastes to different part of the body. So connective tissue का जो first part था वो blood था, right? So blood जो है वो different gaseous transport में help करता है, like oxygen and carbon dioxide are the gases जो कि blood से ही transport होती है. Next is they help in the food digestion also, और hormones की भी transport में help करता है, और बल्कि ये जो ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू बोन. सो बोन्स हैव अ हार्ड मैट्रिक्स विच इज़ मेड अप ऑफ अ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. जो बोन्स हैं वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की बनी होती हैं, एंड दे आर नॉन फ्लेक्सिबल. बोन्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स. जो बोन्स होती हैं वो हमारा एक फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी होता है, मतलब फ्रेमवर्क, जैसे कि अगर बोन्स नहीं होगी हमारी तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे. तो बोन्स जो है वो एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, और डिफरेंट ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज़ लिगामेंट. द टिश्यू इज़ इलास्टिक बट स्ट्रॉन्ग. जो ये लिगामेंट्स जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, मतलब कि फ्लेक्सिबल होते हैं, बट स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. एंड इट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स. इनके पास जो मैट्रिक्स होता है बिल्कुल कम होता है, और लिगामेंट्स जो हैं वो बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं. लाइक 2 बोन्स हैं तो 2 बोन्स के बीच में लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे जो कि 2 बोन्स को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ टेंडन. सो टेंडन्स हैव ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, एंड इनके पास फाइब्रस मैट्रिक्स होता है विच कनेक्ट्स मसल्स टू दी बोन्स. तो जो लिगामेंट्स थे वो 2 बोन्स को जॉइन कर रहे थे, राइट, बट जो टेंडन्स हैं वो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं. एंड नेक्स्ट इज कार्टिलेज. Cartilage contains widely spaced cells in a solid matrix and is made of proteins and sugars. Cartilage has solid yet flexible matrix.
तो जो कार्टिलेज होता है इनके पास वाइडली स्पेस्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन्स और शुगर के बने होते हैं, और ये फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है सॉलिड। द कार्टिलेज स्मूदन्स बोन सर्फेसिस एट द जॉइंट्स, तो ये जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं हमारे जॉइंट्स को, और ये हमारी नोज़, ईयर, ट्रेकिया एंड लैरिंक्स में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज़ एरियोलर टिश्यूज़। एरियोलर टिश्यूज़ हैज़ अ फाइब्रस मैट्रिक्स, it fill up the space inside the organs. It is found between the skin and muscles, around blood vessels and nerves in the bone marrow, etc. Areolar tissue supports internal organs. It helps in the repair of tissues also. तो जो एरियोलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और टिश्यूज़ की रिपेयर में हेल्प करते हैं। लास्ट वन इज़ एडिपोज टिश्यूज़। सो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स एंड आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड ऑर्गन्स। तो जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वो फैट ग्लोब्यूल्स की स्टोरेज में हेल्प करते हैं और जो कि स्किन ऑर्गन्स और स्किन के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ है लिमिटेड मैट्रिक्स, इट इज़ अ सॉफ्ट एंड फैटी टिश्यूज़। तो जो ये जो होते हैं ना स्किन के अराउंड प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉफ्ट और फैटी होते हैं, फैटी टिश्यूज़ होते हैं जो कि मतलब कि ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड इट स्टोर्स फैट्स एंड प्रोवाइड इंसुलेशन टू ऑर्गन सिस्टम। तो नेक्स्ट 7 कनेक्टिव टिश्यूज़ आर ब्लड, bone, ligament, cartilage, tendon, areolar and adipose tissues. So these are the 7 connective tissues which we have learned today. So next is the question answers. Name the type of connective tissues found in the larynx. तो लैरिंक्स में कौन सी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है? सो कार्टिलेज इज़ प्रेजेंट इन द लैरिंक्स। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यूज, तो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो इट इज़ अ सॉलिड फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स विच इज़ composed of proteins and sugars, and it has a widely spaced cells and it is highly flexible, and the function of this tissue is to provide smoothness to the bone surfaces at the joints. तो जॉइंट्स पे जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं तो उनको ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। सो विच इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड व्हाट मेक्स इट हार्ड? तो सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? तो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारा बोन है, और ये बोन इसलिए हार्ड इसलिए होता है बिकॉज देयर इज़ अ डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो फंक्शंस क्या होते हैं बोन्स के? डैट इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. So you have to write the tissue type, structure and the structure and function in your notebook, okay, which we have discussed today. Let's start the next topic. So next question is, why does the bone have a hard matrix whereas the blood has a fluid matrix? तो जो बोन है उसके पास हार्ड मैट्रिक्स क्यों होता है और ब्लड के पास फ्लूइड मैट्रिक्स क्यों होता है? सो द बोन हैज़ अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज़ composed of minerals such as calcium, phosphorus compounds, but the blood contains proteins, salts and hormones which result in a fluid matrix. So this is because the blood needs to flow to different parts of the body while the bone needs to be rigid in order to provide the structure and function, to provide structure and support to the body. So bone जो है वो हार्ड इसीलिए होते हैं बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड दी स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू दी बॉडी। अगर वो बोन्स जो हैं वो फ्लूइडी मटेरियल होंगे लाइक द ब्लड, तो वो स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे हमारी बॉडी को, ठीक है। और ब्लड जो है वो ब्लड जो हो फ्लूइडी ही इसलिए होते हैं और हार्ड इसीलिए नहीं होते बिकॉज ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक गैसेस इसलिए जो ब्लड जो है वो फ्लूइडी होता है एंड द बोन जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एरियोलर टिश्यूज़ एंड adipose tissues on the basis of function. So the areolar tissues fill up the spaces inside the organs and supports internal organs and helps the repair of tissues, whereas adipose tissues जो हैं वो फैट्स की स्टोरेज में हेल्प करते हैं और बॉडी की इंसुलेशन में हेल्प करते हैं। Okay, so students, I hope you have understood this topic. If you have any doubt, you can ask me anytime, and you have to write the questions in your notebook also. Okay, bye bye.